الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز علماء کرام اور نوجوان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑ زبردست امتحان مز روز بیمو، اس لیے کہ یہ مین ساتھی تہ موجود اور سون استاد محترم تہ موجود۔ طالب علم خاطر بوڑ بار امتحان، بہ کر بس اخ زٕ کتھ عرض بطور سبق۔ گۄڈنِچ کتھ کہ یہ مجلس یُس عنوان اس برونٛٹھ کن چھُ عظمت صحابہ۔ صحابہ کرامن متعلق چھ واریاہ زیادہ شک و شبہات یوان امتس من تراون، مگر یس میں قرآن کریم مقدس آیت کریمہ تلاوت کر، اگر یہ آیت سمجھو بوزو اور اس پر ایمان تھو، سون تمام مسائل گژھن حل۔ پھر ہمیں صحابہ کے بارے میں کسی بھی انسان سے مشورہ اور رائے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ کے مقام کے بارے میں، صحابہ کی عظمت کے بارے میں، صحابہ کی شان کے بارے میں، صحابہ کی بلندیوں کے بارے میں، صحابہ کی استقامت کے بارے میں، ان کی ایمان کے بارے میں کسی سے بھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے یہ بتانے کی ضرورت ہے ہمیں صحابہ کے بارے میں سمجھاؤ، صحابہ کیسے تھے، ہمیں صحابہ کے بارے میں بتاؤ، ان کی صبح اور شام کیسی تھی، ہمیں صحابہ کے بارے میں بتاؤ، ان کی جلوت اور خلوت کیسی تھی، ہمیں صحابہ کے بارے میں بتاؤ، ان کی وفاداری کیسی تھی، ہمیں صحابہ کے بارے میں بتاؤ وہ کتنے بہادر تھے، ہمیں صحابہ کے بارے میں بتاؤ وہ کتنے سچے تھے۔ بس اس قرآن کی آیت کو سن لو اور سمجھ لو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، ایک ہی آیت میں اس تمام سوالوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا ہے۔ بھائی تم جب صحابہ کے بارے میں سمجھو گے، جب صحابہ کے بارے میں پڑھو گے، جب صحابہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو گے، سب سے پہلے اس آیت کو سمجھ لینا، اس آیت کو پڑھ لینا، اس آیت کو یاد کر لینا، اس آیت کو اپنے سامنے رکھ لینا۔ کیا؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا، اور صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو چنا ہے اور نبی کے دربار کے لیے منتخب کیا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، ابو بکر کو اللہ نے چنا ہے، عمر کو اللہ نے چنا ہے، عثمان کو اللہ نے چنا ہے، حضرت علی کو اللہ نے چنا ہے، نواسہ حضرت حسین کو اللہ نے بنایا ہے، حسن کو نواسہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہے، امیر معاویہ کو کاتب قرآن اللہ نے بنایا ہے۔ یہ انتخاب اللہ کا ہے، یہ چنا اللہ نے ہے۔ اگر تمہیں اعتراض ہے اس بے ایمان کا اعتراض صرف اللہ کے کلام پر ہونا چاہیے، اگر تمہیں اعتراض ہے اس بے ایمان کو اللہ کے فرمان پر اعتراض ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں جو اللہ کے کلام پر اعتراض کرے گا، اللہ کے فرمان پر اعتراض کرے گا، نبی کے فرمان پر اعتراض کرے گا، قسم بخدا کائنات میں اس سے بڑھ کر دجال اور بے ایمان کوئی نہیں ہو سکتا۔ نعرے نہیں، مجھے چند باتیں سمجھانی ہے بس۔ صحابہ کا انتخاب کس کا ہے؟
अब भाई बोलो, सहाबा का इंतखाब किसका है? अबू बकर का इंतखाब किसका हुआ? भाई किसका इंतखाब है? हज़रत उमर का इंतखाब किसका है? और अमीर मुआविया का इंतखाब? मुझे कहने दो, अबू सुफियान पहले क्या था? अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। ये मेरे नबी की हदीस है, ये मेरे नबी का फरमान है। अगर तू उंगली उठाता है, खुदा की कसम तू कज़्ज़ाब और बेईमान है, क्योंकि मेरे नबी ने कहा अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। अबू सुफियान पहले जो था, मगर जब उसने ईमान लाया, जब वो मुसलमान हो गया, उससे बढ़कर, उससे अजीम आम मुसलमानों में फिर कोई भी नहीं है, क्योंकि वो साहबी रसूल बना, क्योंकि वो वफादार रसूल बना, वो जानिसार रसूल बना, वो दीनदार बना, अल्लाह का मानने वाला बना, जन्नत को मानने वाला बना, जहन्नम का खौफ रखने वाला बना, और नबी का सच्चा वफादार बना। फिर तज़किरा नहीं किया जाएगा अबू सुफियान के बारे में। फिर इस आयत को समझ लो, वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना नस्सफ़ा। अबू सुफियान का इंतखाब भी अल्लाह ने किया है, अमीर मुआविया का इंतखाब भी अल्लाह ने किया है, और हिंदा ने क्या तकलीफ पहुंचाई वो मसला अल्लाह जानता है, अल्लाह का नबी जानता है। मगर जब वो साहबिया बनी, उसका मकाम क्या है, उसका अरूज क्या है, कुरान की आयत पढ़ लो, उसका इंतखाब भी अल्लाह ने किया। एक इंतखाब हुआ, दूसरी बात सिर्फ इंतखाब हुआ, सिर्फ इंतखाब हुआ, बस बात खत्म हो गई। फरमाया नहीं नहीं नहीं, वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना नस्सफ़ा, बल्कि इन तमाम सहाबा पर अल्लाह की सलामती हो। तुम जबान दराजिया करोगे, तुम जबान चलाओगे, तुम सहाबा को भी ईमान कहोगे, तुम सहाबा को धोखे वाला कहोगे, तुम सहाबा को मुर्तद कहोगे, तुम सहाबा पर क्या क्या कसीदे कसोगे। अल्लाह के रब सलामुन, अल्लाह की उन पर सलामती हो, अल्लाह की उन पर रहमत हो, अल्लाह की उन पर मग़फ़िरत हो। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का फरमान है। ज्यादा चोन एतराज चलने के, चोन शोर चलने के, चोन बदगुमानी चलने के, चोन बेईमानी चलने के, चोन दजल चलने के। क्या रब सुन कलाम जो सान खुद आखिरी कलाम, रब सुन फरमान जो सान खुद आखिरी फरमान। और सहाबा को समझने के लिए, सहाबा की मकाम को समझने के लिए, सहाबा की बुलंदियों को समझने के लिए, सहाबा के कमालात को समझने के लिए, सहाबा के जमालात को समझने के लिए, सहाबा की बुलंदियों को समझने के लिए ये काफी है। वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना नस्सफ़ा, चुना सहाबा ने, और अल्लाह की सलामती सहाबा पर है, अल्लाह की मदद सहाबा के साथ है, अल्लाह की नुसरत सहाबा के साथ है, अल्लाह की मग़फ़िरत सहाबा के साथ। अच्छा कातियों समझकिन यो वजह जो सोन अकीद नुहिब अस्हाब रसूलिल्लाह, सोन अकीद हम सहाबा से मोहब्बत कर, हम सहाबा से जोर पा बने, हम सहाबा से ना सॉरी मैं तालिब इल्म चंद मिनट आपके लूंगा बस तकरार के तौर पर, पंजन दोस्तों से देखो तकरार ही करेगो ना, मैं पढ़ो इनसे मैं सही होता ज्यादा तकरार करूंगा मैं। अगर फिर गलती हो जाए, मुफ्ती अली साहब तो चीजन भी बहरहाल इम्तिहान में सरी तरावन में ये मौजूद रोस साजिद रोस, मगर अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह हमारी जुबान से ऐसा कुछ कलमा निकल जाए जो तेरे और मेरे लिए हिदायत के लिए काफी हो जाए। नुहिब अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कमान से मोहब्बत कर, ये ईमानुक जुज, ये ईमानुक हिस्सा, सारी जो साहबे किरामन से क्या करें। दूसरी बात, मोहब्बत तो हम सब से करते हैं, अबू बकर से लेकर उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, सब से मोहब्बत करते हैं। हम अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करते हैं, हम हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, हम अली से भी मोहब्बत करते हैं, साहबे किराम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मगर सुनो, समझ लो, हमारा अकीदा है, वला नुफरितु मिन फी हुब्बि अहदिन मिनहुम, हम उनमें से मोहब्बत के बलबूते पर इफरात के शिकार किसी से भी नहीं होते हैं। हम इफरात और तफरीक के शिकार नहीं होते हैं, हम किसी की मोहब्बत में आकर गुलू नहीं करते हैं। हम के अली साहबी था, नबी का वफादार था, हम यही नहीं कहेंगे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को गलती हुई, वो हज़रत अली तक वही पहुंचाना चाहता था, मगर हम यही नहीं कहेंगे उसको खता हुई, हम कहें नहीं वही नबी तक थी। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह था, इमामुल औलिया मोहम्मद रसूल था, और इमामुन नबीन खातमुन नबीन हज़रत रसूलुल्लाह ही थे। हज़रत अली नबी के जानिसार थे, वफादार थे, बहादुर थे, हैदर कर्रार थे, मगर नबी के गुलाम थे। अच्छा समझे
अच्छा समझ कहीं और पत तुलो तो शोर बदगुमानी फैलाओ, कोई भी फैलाए सुन लो। वला नतबर्रउ मिन अहद मिनहुम, हम सहाबा में से किसी को भी छोड़ने वालों में से नहीं है। हम सहाबा में किसी को भी छोड़ने वालों में से तो खबर क्या, तुम कितनी ज्यादा बदगुमानियां फैलाओ, कितना ज्यादा शोर मचाओ, कितनी ज्यादा दुनिया में हालात को खराब कर दो, ये वो मुकद्दस जमात क्यों, हम कह रहे चुना अल्लाह ने है, लिहाजा हम किसी भी सहाबी को छोड़ने वालों में से नहीं। सारे सहाबा हमारी आंखों की नूर है, रोशनी है। मैं मुख्तसर करने लगा हूं, बहुत ज्यादा मुख्तसर। सहाबा हमारी जान, हमारी शान, हमारी धड़कन, हमारी रूह, हमारी करार, हमारा करार, हमारा सुकून है, सब कुछ है। दूसरी बात सुन लो, हम सब सहाबा से मोहब्बत करते हैं। जब भी उनका तज़किरा होगा खैर के साथ तज़किरा होगा, और जब उनके बारे में बात होगी खैर की बात होगी। क्यों? हुब्बहुम दीनन व ईमानन व हिसानन, हम सहाबा की मोहब्बत को दीन समझते हैं, सहाबा की मोहब्बत को ईमान समझते हैं, सहाबा की मोहब्बत को एहसान समझते हैं, और उनके साथ बुग़्ज़ को कुफ्र समझते हैं, उनके साथ बुग़्ज़ को, उनके साथ नफरत को हम निफाक समझते हैं, उनके साथ नफरत को हम तुग़यानी और सरकशी को समझते हैं। जब ये बात है, इसलिए मेरे नबी ने फरमाया मन सब्ब असहाबी, युस इंसान तो वुचुन अम जबान पे साहबा किराम मुद्दे बदगुमान जबान दराजी और साहबा किरामन गाले गलोच करन। आप इसको समझाओ ये बात, उस शख्स को देख लो, फिर उसको कहो मन सब्ब असहाबी फलअनतुल्लाह, ऐसा पक्का शख्स है इस पर अल्लाह की लानत है, इस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत है, इस पर तमाम इंसानों की लानत है, इसलिए कि इसने नबी के सहाबा पर जबान दराजी की है। आखिरी कलाम इल्म जबान दराजी कर, इस पर अल्लाह ताला सुन लानत, फरिश्तन हुन लानत, तमाम इंसानन हुन लानत। गोया कि सो इंसान यमिस पर अल्लाह ताला सुन गजब गो नाज़िल, सो इंसान यमिस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सुन ये लानत गए नाज़िल। अब क्या हुक्म है? वो आखिरी हुक्म है, वो आखिरी बात है, वो आखिरी आयत है, वो आखिरी मेरा जुमला होगा। वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, बस साफ बात है। जब तुम देखोगे सहाबा पर जबान दराजा हो गई है, अल्लाह की लानत बरस चुकी है, फरिश्तों की लानत आ चुकी है, इंसानों की लानत उस पर हो चुकी है। अब ये अल्लाह का मकबूज तरीन बंदा है और लानती इंसान है। कुरान का आर्डर है, कुरान का हुक्म है, वो सलमान नामी क्यों ना शख्स क्यों ना हो, वो मशहूर क्यों ना हो, जब अमीर मुआविया के खिलाफ जुबान दराजी उसने की है, ईमान वालों का हुक्म है, कलमे वालों का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, ईमान वालों जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, कहर हुआ, अल्लाह की लानत बरसी, आप ऐसे शख्स से कतअन कोई दोस्ती और ताल्लुक मत रखो। अमिस नफर से थो न कहीं ताल्लुक, अमिस मत थो कहीं दोस्ती यमिस पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला सुन क्या गो गजब गो। कत समझ कहीं यमिस पे खुदा सुन गजब गो नाजिल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, यमिस पे गजब गो नाजिल। वो सलमान नामी क्यों ना हो, किस नाम से लोग किसको क्यों ना पुकारते हो, अच्छा साफ ऐलान करो अमिस कहीं ताल्लुक, और दूसरे लोग क्यों ना हो, इनकी मजालिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इनके तकरीरों से हमारे कोई ताल्लुक नहीं है, इनसे ना कोई दोस्ती होगी, ना कोई रिश्तेदारी होगी, ना कोई हमदर्दी होगी, ना कोई मोहब्बत होगी, ना कोई नरमी होगी, ना सखावत होगी, कोई भी कुछ भी नहीं होगा। क्या इकत गए साफ यमन पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला सुन क्या लानत आमुज करना, लिहाजा यमन से सोन दोस्ती। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जी ने सहरनी वन बोझ को अमल करने तौफीक अता। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला खैर मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।